बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum student, we start our class with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is class 4 and the period is English Literature E2 and this is our second video. In this video, as you know that through the video session we are revising the whole stuff of second semester final term, so obviously this video is also based on the revision. Okay, so this is our second video. Before starting the today's class video, let's have a small recap of our previous video, what we learned or which stories or poem we had revised in our previous video. Well, in our previous video, video number 1, we had revised the story number 1, the horse and end, and then we had revised the story, the first card, and plus poem, the tide rises and tides fall. And after the video, I have given you the worksheet. I hope you have solved that worksheet or assessment as well. ठीक है ना. Now come to the today's class. In today's class again we will revise the topics of second semester final term. Okay, so now come to the today's class topics. What are the today's class topic? In this class, topics to be described. Which topic we will describe today? In this class we will revise the two stories from the book White Range Readers. The story number 1 is A Song for a King, and then we will revise the story Samson. These two stories, A Song for a King and Samson, we will revise in today's class, and I will also read that story. Okay, so you will also continue the reading at your home, so you will because reading is also very important. Okay, so let's start the today's class. Well, as you know that this is our revision class. First we will start the revision from the story A Song for a King. Revision of story A Song for a King. Well, A Song for a King story is belong from the book White Range Reader, written by Frederick Conan and Phyllis Lardew. ठीक है. Now come to the story. Song means Gana and King means Basha. The meaning of this story is A Song for a King means Basha के लिए गाना. ठीक है ना. Now come to the main character or main character of this story. Well, before come to the main character, let me tell you कि we had studied this story in our second semester midterm in our physical classes. ठीक है ना. इस स्टोरी को हमने कब पढ़ा था? आपके सेकेंड सेमेस्टर के midterm में फिजिकल क्लासेस में, when the school were open, जब स्कूल ओपन थे. इसे हमने जब कवर किया था. आज के क्लास में हम इसका रिव्यू लेंगे, इसको रिवाइज करेंगे. ठीक है ना. We will revise the whole story plus working. So come to the main character of this story. In this story there were only the two main characters. इस स्टोरी में आपके पास सिर्फ दो मेन कैरेक्टर थे. नंबर 1 is ब्लॉन्डल. सबसे पहले आपके पास कौन था? ब्लॉन्डल था. एंड हु वाज ब्लॉन्डल? आई टोल्ड यू अबाउट ब्लॉन्डल कि ही वाज अ पैलेस मिनिस्ट्रल. एंड व्हाट इज अ मिनिस्ट्रल? मिनिस्ट्रल मीन्स सिंगर. ठीक है ना. ब्लॉन्डल कौन था? पैलेस मिनिस्ट्रल था ब्लॉन्डल. एंड व्हाट इज मिनिस्ट्रल? मिनिस्ट्रल का मतलब सिंगर होता है, यानी कि गाने गाने वाला. ठीक है. दैन द सेकेंड कैरेक्टर इज किंग रिचर्ड. ठीक है ना. जैसे कि आपको पता है कि स्टोरी का नाम क्या है? अ सॉन्ग फॉर अ किंग. तो किंग वाज द सेकंड मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड द नेम ऑफ द किंग
वॉज रिचर्ड, ठीक है, और जो किंग का नाम क्या था, रिचर्ड था. नाउ कम टू द स्टोरी कि व्हाट हैपन इन दिस स्टोरी. Well, in this story, as you know, that Blondel was a palace minstrel. Blondel कौन था, palace minstrel था, and he sang for King Richard. King Richard and Blondel were also very good friend. कि King Richard और जो Blondel था वो बहुत अच्छे friend भी थे. Once King Richard was went to the wards, ठीक है ना. एक दिन क्या होता है कि King Richard wards पे जाता है. Blondel was not gone with him. Blondel उसके साथ नहीं जाता because he was ill at that time, क्योंकि Blondel उस टाइम पे बीमार होता है. बट नाउ द टाइम वॉज केम कि जब व्हेन द किंग रिचर्ड वुड रिटर्न, ठीक है ना, कि अब ऐसा वक्त आ गया कि किंग रिचर्ड को आना है वापस. तो ब्लॉन्डल वॉज वेरी हैप्पी. तो ब्लॉन्डल बहुत हैप्पी होता है, बट किंग रिचर्ड जो है वापस नहीं आता है, ठीक है ना. दिस न्यूज़ मेड रिचर्ड सैड. तो किंग रिचर्ड जो है वापस नहीं आता, तो ब्लॉन्डल जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, ठीक है ना. ब्लॉन्डल जो है, जो किंग रिचर्ड के बारे में जो न्यूज़ होती है वो ये होती है कि किंग रिचर्ड को जब वो वापस आ रहा था फ्रॉम द हॉलीवुड, समवन किडनैप है, चूँकि किसी ने उसे किडनैप कर लिया था, और दे इम्प्रिजन द किंग रिचर्ड इन द कैसल समवेयर इन यूरोप. और उसी यूरोप में कहीं जगह पे, किसी जगह पे कैसल में उसे कैद कर दिया गया था. नो वन नो विच कैसल इट वॉज. किसी को नहीं पता था वो कौन सा कैसल था. सो ब्लॉन्डल वॉज वेरी वरीड अबाउट किंग रिचर्ड बिकॉज दे वर नॉट ओनली अ किंग एंड सर्वेंट, दे डोंट शेयर अ रिलेशन ऑफ अ किंग एंड रिचर्ड, बट दे वर ऑल्सो अ गुड फ्रेंड. तो वो सिर्फ आपस में जो थे वो उनका ये वाला रिश्ता नहीं था कि किंग रिचर्ड उसका सर्वेंट है, जो ब्लॉन्डल है किंग रिचर्ड का सर्वेंट है, बल्कि वो कौन थे, आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे, ठीक है ना. तो देन ब्लॉन्डल डिसाइडेड ही विल फाइंड किंग रिचर्ड. तो ब्लॉन्डल डिसाइड करता है कि मैं किंग रिचर्ड को ढूंढूंगा, बट द क्वेश्चन इज़ हाउ, कैसे, ठीक है ना. सो फिर वो क्या करता है, सो ही डिसाइडेड कि आई हैव अ वेरी गुड वॉइस, ठीक है ना. ब्लॉन्डल क्या ख्याल करता है कि मेरी वॉइस जो है बहुत अच्छी है, एंड किंग रिचर्ड वॉज फॉन्ड ऑफ माई वॉइस, और किंग रिचर्ड जो है मेरी आवाज़ सुनने का बहुत शौकीन है. सो व्हाट टू डू टू फाइंड किंग रिचर्ड, ठीक है ना. तो मैं क्या करूँ किंग रिचर्ड को ढूंढने के लिए. सो ही डिसाइडेड दैट ही विल गो टू द आउटसाइड एवरी कैसल इन यूरोप. तो वो जितने भी यूरोप में कैसल है उन सब के सामने जाएगा, एंड ही विल सिंग सॉन्ग फॉर किंग रिचर्ड, और वो किंग रिचर्ड के लिए गाना गाएगा. सो इफ़ किंग रिचर्ड वॉज इन दैट कैसल, अगर किंग रिचर्ड उस कैसल में होगा, देन ही विल ऑल्सो रिप्लाई, ठीक है ना. तो वो क्या करेगा, उसे रिप्लाई करेगा. सो दिस इज़ हाउ ही विल फाइंड द किंग रिचर्ड, और वो इस तरह से किंग रिचर्ड को ढूंढ लेगा. सो ही मेड अ प्लान, स्ट्रैटेजी, और यू कैन से टू फाइंड द किंग रिचर्ड. और किंग रिचर्ड को ढूंढने के लिए वो प्लान और स्ट्रैटेजी बनाता है. एंड देन क्या करता है, देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी. फिर वो अपनी जर्नी यानी कि सफ़र स्टार्ट करता है. ही गो टू द एवरी कैसल इन द यूरोप, ठीक है ना. यूरोप में जितने भी कैसल होते हैं वो सबके सामने जाता है, एंड ही इज सैंग सॉन्ग, ठीक है ना. वो गाने गाता है इन द होपिंग दैट किंग रिचर्ड विल लिसन टू हिम एंड विल रिप्लाई टू हिम, और इस उम्मीद पर कि किंग रिचर्ड उसे सुनेगा और उसे रिप्लाई करेगा. So months went, week went, even के years went, but he didn't find King Richard. महीने गुजर गए, दिन गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन उसे किंग रिचर्ड नहीं मिला. He was losing hope somewhere, और वो अपनी हिम्मत हार रहा था. But then he think about King Richard, और फिर वो किंग रिचर्ड के बारे में सोचने लगा कि किंग रिचर्ड might be वेटिंग फॉर समवन हु विल कम एंड विल मेक हिम फ्री, कि कोई आएगा और उसे वहाँ से फ्री कर लेगा. सो दैट थिंकिंग विल गिव हिम अ न्यू होप, एंड ही देन अगेन स्टार्टेड द सर्चिंग ऑफ किंग रिचर्ड, और दोबारा से किंग रिचर्ड को ढूंढने की तलाश जारी करता है. एंड फाइनली व्हेन ही केम टू द ऑस्ट्रिया, और वो ऑस्ट्रिया में आता है, ही वॉज नो होप कि ही विल फाइंड द किंग रिचर्ड बिकॉज द कैसल दैट इज़ इन ऑस्ट्रिया, इट वॉज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन. तो वो उम्मीद नहीं कर रहा होता है कि जो मैं ऑस्ट्रिया के कैसल के पास आया हूँ यानी कि महल, तो वहाँ पे किंग रिचर्ड होगा. वाई? क्योंकि द कैसल वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन. जो कैसल की कंडीशन होती है, हालत होती है, वो काफ़ी ख़राब होती है. इट वॉज एन ओल्ड कैसल, वो ओल्ड कैसल होता है. बट लेकिन क्या होता है कि ही सिंग सॉन्ग, लेकिन वो सॉन्ग गाता है, ठीक है ना. ही सैंग सॉन्ग, वो सॉन्ग गाता है, एंड फाइनली हिज ड्रीम, जो उसका ख्वाब था, केम ट्रू, जो उसका ख्वाब पूरा हो गया. एंड फाइनली किंग रिचर्ड आंसर्ड हिज सॉन्ग, ठीक है ना. और फाइनली किंग रिचर्ड ने उसके सॉन्ग को आंसर किया, एंड दिस इज़ हाउ ही फाउंड
किंग रिचर्ड, और इस तरह से उसने किंग रिचर्ड को ढूंढा था. सो दिस इज़ द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द किंग रिचर्ड, हाउ ब्लॉन्डल फाउंड किंग रिचर्ड बाय हिज अडोरेबल वॉइस, कि किस तरह से किंग रिचर्ड ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से बादशाह जिसका नाम रिचर्ड था उसे ढूंढा. आई होप कि यू हैव गॉट दिस वट एवर आई टोल्ड यू अबाउट दिस स्टोरी ऑलरेडी, although वी हैव ऑलरेडी studied this story in our physical classes. Now take out your book. I will read 1 or 2 pages of this story, then continue remaining pages you will continue at your home because reading is very important. ठीक है ना, आपने कंटिन्यू करना है. अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो यू आर बी एबल टू सॉल्व द MCQs दैट आई विल गिव एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एज अ वर्कशीट और एज अ असेसमेंट. ठीक है ना, अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो वो आप उन MCQs को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, जिसे मैं आपको वीडियो के एंड में एज अ असेसमेंट आपको दूंगी कि आपके रिविजन क्लास में आपने कितना पढ़ा है. ओके, नाउ टेक आउट योर बुक एंड स्टार्ट द रीडिंग and start reading with me. This is your book, White Range Reader. In this book you will find this story, A Song for a King. आपको ये स्टोरी कहाँ मिलेगी? White Range Reader की बुक में. So take out this book and start reading. Okay student, so this is your book, White Range Reader, green book 4. In this book you will find the story, A Song for a King. So open your book and come to the story, A Song for a King. The page number is 44. This is the page number 44. So obviously this page is 45. The story, A Song for a King, is on page number 45. Book is White Range Reader. Okay, I am reading this story with translation. Remaining reading you will continue at your home. A Song for a King. A song यानी कि गाना बादशाह के लिए. ब्लॉन्डल sang, ब्लॉन्डल गा रहा था. His voice echoed through the palace. उसकी आवाज़ पैलेस यानी कि महल में गूंज रही थी. And come to the ears of the soldiers who stroll in the courtyard. और जो soldiers यानी कि फाइटर courtyard यानी कि सहन में वॉक कर रहे थे, स्ट्रॉल कर रहे थे, उनके कानों तक भी इसकी आवाज़ पहुंच रही थी. It's good to hear Blondel again. ये एक बहुत अच्छी बात है ब्लॉन्डल को दोबारा सुनना. They said and they stopped talking while to listen to his song. ये उन्होंने किसने कहा? सोल्जर ने कहा, जब वो आपस में क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे. लेकिन जब ब्लॉन्डल का गाना शुरू हुआ तो वो खामोशी से उसकी गाने को सुनने लगे. इट वॉज ब्लॉन्डल्स वर्क टू सिंग. ये ब्लॉन्डल का काम था कि गाने गाना. फॉर ही वॉज द पैलेस मिनिस्ट्रल. क्यों? क्योंकि वो क्या था? एक पैलेस मिनिस्ट्रल था. मिनिस्ट्रल यानी कि सिंगर, पैलेस यानी कि महल. ठीक है. एंड वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन इंग्लैंड. और ब्लॉन्डल कौन था? एक बेहतरीन सिंगर था इंग्लैंड का. ठीक है ना, यानी कि जो बेहतरीन सिंगर्स होते हैं उनमें से एक सिंगर था इंग्लैंड का. बट टुडे ही सेंग बिकॉज ही वॉज हैप्पी. लेकिन आज वो इसीलिए गाना गा रहा था क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, खुश था. ही वॉज हैप्पी बिकॉज द फर्स्ट सोल्जर हैड रिटर्न फ्रॉम द हॉली वॉर्ड्स. वो इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि सोल्जर्स की पहली जो टीम थी या पहली पार्टी थी वो हॉली वॉर्ड्स हम किसे कहते हैं? जो आपके पास रिलीजियस वॉर्ड्स होती हैं यानी कि मजहबी जंगें, या आप कह सकते हैं क्रूसेड्स या फिर जिहाद. ठीक है ना, उनसे पहली पार्टी वापस आ गई थी. सून अदर्स वुड कम बैक. जल्द ही दूसरे भी वापस आने वाले हैं, होंगे. एंड विद दैम एनी डे नाउ वुड कम रिचर्ड द किंग. और उनके साथ जो होगा आने वाले डे में अभी जो है कौन होगा? रिचर्ड होगा. एंड हु वॉज रिचर्ड? किंग. किंग वॉज द रिचर्ड. ठीक है ना. नाउ कम टू द पिक्चर. एज यू कैन सी द पिक्चर इज ऑन पेज नंबर 5. इन दिस पिक्चर ही इज़ अ सोल्जर and he is a Blondel. In this picture Blondel is asking about the King Richard to the soldier. वो King Richard क्या है? सोल्जर से King Richard के बारे में पूछ रहा है. ठीक है ना. Now turn the page and come to the page number 46. सही है. Time. Okay student, now turn the page and come to the page number 46. Long since Richard had gone to the wars. ठीक है ना, काफ़ी टाइम हो गया था जब रिचर्ड जंग पे गया हुआ था. ब्लॉन्डल हैड बीन इल एट द टाइम. ब्लॉन्डल क्या था? बीमार था उस टाइम पे. और ही वुड हैव गॉन टू, और वो भी उसके साथ, या फिर अगर वो ब्लॉन्डल बीमार नहीं होता तो वो भी किंग रिचर्ड के साथ जाता. लेकिन जब किंग रिचर्ड जा रहा था उस टाइम पे ब्लॉन्डल बीमार था. दैट्स वाई जो है ब्लॉन्डल उनके साथ नहीं गया.
बट नाउ रिचर्ड वॉज ऑन हिज वे बैक, लेकिन अब जो रिचर्ड है वो अपने वापसी के रास्ते पर है. सून ही एंड ब्लॉन्डल वुड सिंग्स टू ईच अदर, और क्या होगा, जल्दी ब्लॉन्डल और किंग रिचर्ड जो हैं वो गाना एक साथ गाएंगे. द न्यू सॉन्ग दे हैड रिटन, जो न्यू सॉन्ग ब्लॉन्डल ने लिखे हैं वो, एंड द ओल्ड सॉन्ग्स दे हैड संग मैनी टाइम बिफोर, और वो पुराने गाने जो वो पहले लिखे हुए थे जो बहुत बार गा चुके हैं उन्हें भी वो दोबारा सिंग करेंगे. फॉर नॉट ओनली वॉज रिचर्ड द किंग द ब्लॉन्डल हिज मिनिस्ट्रल, बट दे वर वेरी ग्रेट फ्रेंड. ठीक है ना, किंग रिचर्ड के लिए जो था बादशाह था वो, लेकिन ब्लॉन्डल उसके लिए एज अ सर्वेंट ही होगा ना जो काम कर रहा था. ही वॉज अ पैलेस मिनिस्टर, जिसका काम था कि किंग के लिए गाने गाए, उसे प्लीज़ करे. ठीक है ना, लेकिन इसके साथ साथ दे वर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप. ठीक है ना, इसके साथ वो क्या कर रहे थे, एक फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड होता है यानी कि दोस्ती का, वो उसे शेयर कर रहे थे. ठीक है, सडनली ब्लॉन्डल स्टॉप सिंगिंग फॉर ही हेard horses hooves beating on the stony roads. ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ कि सिंगर जो ब्लॉन्डल था उसने गाना बंद करा. क्यों? क्योंकि उसने हॉर्सेस हूव्स, हॉर्सेस हम कहते हैं, हम हॉर्सेस के जो पैर होते हैं ना उन्हें, ठीक है, हूव्स, तो उसने क्या है स्टोनी सड़क पे उनकी आवाज़ सुनी थी, तो उसने आवाज़ सुन के उस गाने को बंद कर दिया. ठीक है, ही लुक आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखा था. एंड सो मोर सोल्जर्स रिटर्निंग, और उसने देखा कि और भी दूसरे सोल्जर्स वापस आ गए थे. देयर क्लोथ्स वर शैबी एंड देयर बैनर्स वर टैटर्ड, उनके जो क्लोथ्स थे वो फटे हुए थे और जो उनके बैनर्स यानी कि फ्लैग थे वो भी उनके फटे हुए थे. परहैप्स रिचर्ड वॉज अमंग दैम, शायद रिचर्ड उनके साथ हो. क्विकली ब्लॉन्डल देख ले ना, क्विकली ब्लॉन्डल रन टू मीट देम calling a welcome, looking from one to another. Richard the king wasn't there. तो क्विकली जो है यानी कि जल्दी से ब्लॉन्डल वहाँ गया ताकि वो उनको मिल सके, उन्हें वेलकम बैक कह सके. ठीक है ना, तो वो एक के बाद एक सोल्जर को देख रहा था, बट ही डिडंट फाइंड अ किंग रिचर्ड देयर, लेकिन उसे वहाँ पे किंग रिचर्ड नहीं मिला था. टेल मी सेड ब्लॉन्डल, मुझे बताओ, किसने कहा, ब्लॉन्डल ने. व्हेन ही हैड ग्रेटेड दैम ऑल. ठीक है ना, तो ब्लॉन्डल ने जब उनको ग्रेटेड कर रहा था यानी कि उनसे मिल रहा था, उन्हें सलाम पेश कर रहा था, तो उसने पूछा ब्लॉन्डल ने, हाउ इज़ किंग रिचर्ड, कि किंग रिचर्ड कैसा है. ही वॉज़ वेल व्हेन लास्ट वी सॉ हिम, वो अच्छा था किंग रिचर्ड जब हमने उसे आखिरी बार देखा था. रिप्लाइड वन ऑफ द सोल्जर, जो उनके साथ सोल्जर्स आए थे, एक सोल्जर ने जवाब दिया, वी केम बैक इन अ स्मॉल पार्टीज़ बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी टू ट्रैवल अक्रॉस यूरोप. हम छोटी स्मॉल पार्टीज़ में वापस आए हैं यूरोप में, क्योंकि ये हमारे लिए मुश्किल था अगर हम सब साथ में आएंगे. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक तो ट्रैवलिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है, दूसरा आपके पास ये एक फेयर भी होता है कि अगर आप जब वापस आ रहे हैं तो आपके ऊपर दोबारा से अटैक ना हो जाए. ठीक है ना, आपको वीक पाकर, इसीलिए वो स्मॉल पार्टीज़ में वापस आ रहे थे. मे बी द किंग सैड ही वुड फॉलो, किंग ने कहा था वो हमें फॉलो करेगा, हमारे पीछे आएगा. ही विल हेयर एनी वीक नाउ, और अब वो यहाँ पे कभी भी आ सकता है. पेज 46 तक मैंने रीड किया है स्टोरी को. रिमेनिंग पेजेस आप लोग इसको रीड करेंगे इन दिस वे. ठीक है ना, इसी तरह से आप इसे अपने अपने घर में रीड करेंगे. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग दिस. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपके पास जो है रीडिंग हेल्प्स यू टू सॉल्व MCQs. रीडिंग आपको हेल्प करती है ताकि आप MCQs को सॉल्व कर सकें. ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग और आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी. नाउ ओपन योर कॉपी एंड कम टू द वर्किंग ऑफ स्टोरी अ सॉन्ग फॉर अ किंग. ठीक है ना, नाउ वी विल डिस्कस द वर्क ऑफ दिस स्टोरी. अब हम इस वर्क को, इस स्टोरी के काम को डिस्कस करेंगे जिसे हमने क्लास में किया था. सो ओपन योर कॉपी एंड मैच योर वर्क विद मी. ओके, एज यू नो, वेन एवर वी हैड स्टार्टेड एनी स्टोरी, जब भी हम कोई स्टोरी स्टार्ट किया करते थे, आफ्टर द रीडिंग वी हैड अ डिक्टेशन. रीडिंग के बाद हमारे पास क्या होता था, डिक्टेशन होता था. तो अ सॉन्ग फॉर अ किंग में भी सबसे पहले हमने क्या किया था, डिक्टेशन किया था. आफ्टर द डिक्टेशन वी डिड वर्ड्स मीनिंग, हमने वर्ड्स मीनिंग किए थे.
दोबारा से एक बार रीड कर रही हूँ, आप उसे अपनी कॉपी में मैच कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज इकोड। इको का मतलब गूंजना यानी कि रिपीट होना। ड्यूक यानी कि प्रिंस यानी कि बादशाह। हूव्स, हूव्स को आप फुट कह सकते हैं यानी कि पैर। बेसिकली हूव्स क्या होता है? हूव्स मीन हॉर्स फुट। जो घोड़ों के पैर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हूव्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इंसानों का जो पैर होता है उसे हम फीट कहते हैं, तो जो कैट के पैर होते हैं उन्हें हम पॉ कहते हैं, इसी तरह से। फिर आपके पास है टैचट यानी कि टॉन, फटा हुआ। देन आपके पास है स्ट्रॉल्ड यानी कि वेंड्रेड भी आप कह सकते हैं, या फिर वॉक भी आप कह सकते हैं, चलना, ठीक है। तो ये 5 आपके पास थे। नंबर 1 इज स्ट्रॉल, देन 2 इज हूव्स, थर्ड 1 इज ड्यूक, फोर्थ 1 इज टैटर्ड एंड फिफ्थ 1 इज इकोड यानी कि रिपीट होना, ठीक है। आफ्टर द वर्ड्स मीनिंग वी डिड MCQs फ्रॉम दिस स्टोरी। फर्स्ट 1 इज ब्लॉन्डल वॉज अ ग्रेट डैश डॉक्टर और सिंगर। What we learn about in this story about Blondel? Blondel was a great singer. So the correct answer is singer. Then number 2 is Dash had found Richard. छोड़ो ना, कहाँ से? After the words meaning we had MCQs from this story, a song for a king. Now come to the MCQs. ओके अच्छा, ये MCQs आपकी कॉपी में डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि जो है हम इसको डिफरेंट तरीके से कर देते ताकि हर जगह एक ही सेम रिपीटिशन ना हो, ठीक है। MCQs आपकी बेसिकली रीडिंग के ऊपर बेस करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट MCQs इज ब्लॉन्डल वॉज अ ग्रेट डैश, ठीक है ना। डॉक्टर और सिंगर, हु वॉज ब्लॉन्डल? वट वी लर्न अबाउट द ब्लॉन्डल इन स्टोरी अ सॉन्ग फॉर अ किंग? वी स्टडीड दैट ब्लॉन्डल वॉज अ पैलेस मिनिस्ट्रल। एंड वॉट इज अ मिनिस्ट्रल? मिनिस्ट्रल मीन्स सिंगर. So who was Blondel? Blondel was a great singer. Then second one is Dash had found Richard. ठीक है, who found King Richard? किसको King Richard मिला था, ठीक है ना। Blondel और King, ठीक है ना, Richard। तो Blondel और soldier Blondel को। Richard was a dash. Richard कौन था? Richard was a king. After the MCQs, मुझे ना नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। Okay, now come to the second. After the MCQs, what we did? Question answer from this story. The first question is who was a palace minstrel? कि palace minstrel कौन था? जी कौन था? Blondel was a palace minstrel. Blondel था. एंड देन आपके पास था वेयर वॉज किंग रिचर्ड इम्प्रिजन, के किंग रिचर्ड को कहाँ पे कैद करके रखा गया था? किंग रिचर्ड वॉज इम्प्रिजन इन द कैसल ऑफ ऑस्ट्रिया। किंग रिचर्ड को ऑस्ट्रिया के एक कैसल में यानी कि महल में बंद करके कैद करके रखा गया था। मेरा कॉपी का काम ख़त्म हो गया, अब बुक का काम है। दिख गया मुझे भी, ठीक है। आफ्टर द क्वेश्चन आंसर व्हाट वी हैड इन स्टोरी अ सॉन्ग फॉर अ किंग। वेल, अ सॉन्ग फॉर अ किंग, द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस स्टोरी वॉज अ पिक्टोरियल कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना। लास्ट एक्सरसाइज आपके पास क्या थी? पिक्टोरियल कॉम्प्रीहेंशन था। एंड व्हाट इज पिक्टोरियल कॉम्प्रीहेंशन? वेल, पिक्टोरियल कॉम्प्रीहेंशन, इन पिक्टोरियल कॉम्प्रीहेंशन अ पिक्चर इज गिवन टू यू, आपको एक पिक्चर दी जाती है। यू हैव टू लुक दैट पिक्चर वेरी केयरफुली, आपको उस पिक्चर को बहुत एहतियात से केयरफुली देखना होता है। एट द एंड ऑफ द पिक्चर देयर वाज सम क्वेश्चंस वर गिवन, ठीक है ना। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे और यू विल आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम द पिक्चर। आपको उस क्वेश्चन के आंसर करने थे, किससे? पिक्चर को देखने थे, ठीक है ना। सो फॉर दिस एक्टिविटी वी हैड सिलेक्टेड द पिक्चर फ्रॉम, दिस इज द पेज नंबर 47. So this page will automatically means 48 and 49. So the picture is on page number 48 and 49 we had selected for this activity for pictorial comprehension. Okay, look this picture carefully. Okay, now tell me what is the character name or who
ठीक है ना, टेल मी द कैरेक्टर नेम। तो द कैरेक्टर दैट इज शोइंग इन दिस पिक्चर, दिस इज द कैरेक्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैरेक्टर, आपको ये बताना है। सो द कैरेक्टर वॉज ब्लॉन्डल, द कैरेक्टर इज ब्लॉन्डल, जो कैरेक्टर है वो कौन है, ब्लॉन्डल है, ठीक है ना। द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर, कि आपको डिस्क्राइब करना है इस पिक्चर में क्या हो रहा है। So look the picture very carefully. This is Blondel. As you can see in his hand there is a musical instrument. ठीक है ना, इसके हाथ में क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एंड ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द कैसल, ठीक है ना, ये कहाँ खड़ा हुआ है, कैसल के बाहर खड़ा हुआ है। कैसल यानी कि महल है ना, अगर आप पिक्चर को देखें अच्छे से, ठीक है। और ये महल के बाहर खड़ा हुआ है और ये क्या कर रहा है, इसके लिप्स थोड़े ओपन है, इसका मतलब ये कुछ गा रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर ब्लॉन्डल इज सिंगिंग अ सॉन्ग आउटसाइड द कैसल, कि ब्लॉन्डल इस पिक्चर में गाना गा रहा है कैसल, महल के सामने। सो दिस वॉज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस स्टोरी, अ सॉन्ग फॉर अ किंग। Okay students, so that was a review or revision of the story A Song for a King. I hope you have got whatever I told you about this story. ठीक है, आपको वो सब समझ में आ गया होगा जिसे हमने इस स्टोरी में डिस्कस किया या मैंने आपको दोबारा से बताया है, ठीक है ना। नाउ कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। वेल in this class we will after the Song for a King we will revise or review the story Samson, ठीक है ना। इसके बाद हम स्टोरी सैमसन पर आएंगे एंड दिस स्टोरी इज अगेन बिलोंग फ्रॉम द बुक वाइड रेंज रीडर। ये स्टोरी भी आपके पास किस में है, वाइड रेंज रीडर में है, ठीक है ना। आप आ जाएं दूसरी स्टोरी पे, रिवीजन ऑफ स्टोरी अ सॉन्ग फॉर अ किंग के बाद आपके पास दूसरी स्टोरी कौन सी है, सैमसन है। नाउ कम टू द स्टोरी सैमसन, ठीक है। ओके नाउ कम, अब हम क्या करेंगे, स्टोरी सैमसन को रिव्यू करेंगे। सो कम टू द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। व्हाट वर द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी सैमसन, कि सैमसन के मेन कैरेक्टर्स आपके पास कौन कौन से थे। सबसे पहले तो जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर है, सैमसन क्या है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय, ये एक लड़के का नाम है। तो सबसे पहला मेन कैरेक्टर आपके पास क्या होगा, ऑब्वियसली सैमसन। देन डिलाइला, Delilah was the name of a girl and she was Samson's वाइफ, ठीक है। डिलाइला कौन थी, डिलाइला एक लड़की का नाम है एंड हु वाज डिलाइला, डिलाइला वाज अ सैमसन्स वाइफ, डिलाइला सैमसन की वाइफ थी। देन द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी वर फेलिस्टाइन्स, ठीक है ना। फेलिस्टाइन्स आपके पास थर्ड मेन कैरेक्टर में आते हैं। हु वर फेलिस्टाइन फॉर द एनिमी ऑफ सैमसन, ठीक है ना। फेलिस्टाइन कौन थे, सैमसन की जो थे एनिमी थे, दुश्मन थे, ठीक है ना। कम टू द टॉपिक व्हाट, ठीक है ना, कि व्हाट कि स्टोरी में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी सैमसन, ठीक है। इन दिस स्टोरी लाइक आई टोल्ड यू कि द नेम ऑफ अ बॉय इज़ अ सैमसन, द मेन कैरेक्टर वाज सैमसन, डिलाइला एंड फेलिस्टाइन। द स्टोरी इज राउंड, ठीक है ना, इन स्टोरीज़ की, इन कैरेक्टर्स के ऊपर ये स्टोरी बेस करती है। इन दिस स्टोरी सैमसन वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉल एंड ब्रेव मैन, ठीक है ना, एंड ही हैड सम सुपर पावर्स, ठीक है। सैमसन कौन था, एक टॉल लंबा ब्रेव लड़का था एंड ही हैड सम सुपर पावर, ठीक है। और उसके पास कुछ सुपर पावर थी। सुपर पावर का मतलब आपके पास क्या होता है, कुछ ऐसी नेचुरल ताकतें जो दूसरे लोगों के पास नहीं होती हैं। ही वॉज, यू कैन से, अ गॉड गिफ्टेड बॉय, ठीक है ना। उसके पास क्या था, गॉड गिफ्टेड बॉय था एंड ही हैड अ सुपर पावर। और उसके पास सुपर पावर क्या थी कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्गर मैन, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यानी कि बहुत मजबूत आदमी था, ठीक है। सो इन दिस स्टोरी फेलिस्टाइन वर द एनिमीज ऑफ सैमसन्स कंट्रीज फेलो, ठीक है। जो फेलिस्टाइन थे वो सैमसन की कंट्री फेलो यानी कि जो उसके आदमी कंट्री मुल्क के लोग थे वो उनके दुश्मन थे, ठीक है। सो व्हेन द सैमसन, एज आई टोल्ड यू अबाउट, सैमसन वाज अ ब्रेव एंड ही हैड अ सुपर नेचुरल पावर। सो व्हेन ही ग्रो अप, ठीक है, जब वो बड़ा हुआ तो ही ज्वाइन आर्मी, ठीक है ना। सो ही बिकम अ सोल्जर, ही बिकेम सोल्जर, वो सोल्जर बना था। एंड व्हेन ही बिकम अ सोल्जर पैलेस्टाइन्स वर नेवर डिफीट हिम, ठीक है ना। तो पैलेस्टाइन जो है उसे कभी भी डिफीट नहीं कर पा रहे थे। तो पैलेस्टाइन
वर मेड अ प्लान, ठीक है ना। पैलेस्टाइन ने क्या करा, एक प्लान बनाया। दे ग्रीड द डिलाइला, उन्होंने क्या करा, डिलाइला जो सैमसन की वाइफ थी उसे ग्रीड करा, यानी कि उसे लालच दी, ठीक है ना, उसे ब्राइबरी दी, लालच दी या रिश्वत दी, आप कुछ भी कह सकते हैं। और वो क्या कि अगर आप ये काम करोगे हमारे लिए, इफ़ यू, ठीक है ना, अगर आप ये काम करोगे हमारे लिए कि व्हाट इज़ द, इफ़ यू नो कि इफ़ यू टेल अस व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सैमसन स्ट्रेंथ, कि अगर आप हमें बताओगी कि सैमसन की सीक्रेट का, स्ट्रेंथ का सीक्रेट क्या है, देन वी विल गिव यू द 1100 पीसीस ऑफ सिल्वर, तो हम आपको 1100 पीसेस ऑफ सिल्वर यानी कि चांदी के सिक्के या फिर चांदी के पीसेस हम आपको, या फिर चांदी के टुकड़े देंगे। सो डिलाइला को ये बहुत अच्छा लगता है कि शी वॉज फैसिनेटेड अबाउट द लग्जरियस लाइफ, वो एक बहुत फैसिनेटेड थी लग्जरियस लाइफ के लिए, तो वो ये काम शुरू कर देती है, ठीक है ना। एंड द पावर ऑफ सैमसन वॉज इन हिज हेयर, ऑलवेज रिमेंबर द सुपर पावर दैट सैमसन हैड इन दैट पावर इज़ इन हिज हेयर, जो पावर थी वो उसके बालों में थी, ठीक है। तो डिलाइला स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट हिज स्ट्रेंथ, तो डिलाइला उससे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर देती है कि वाई यू आर सो स्ट्रॉन्ग, आप इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है, और व्हाट कुड वी डू टू मेक यू एज वीक एज एनी अदर पर्सन, हम ऐसा क्या करें कि आपको इतना वीक कर दें जिससे कि दूसरे लोग हैं। सो 3 टाइम्स सैमसन लाइड टू हर, ठीक है ना, 3 टाइम यानी कि 3 बार वो अपनी वाइफ से झूठ बोलता है अबाउट हिज स्ट्रेंथ। एंड आफ्टर द 3rd टाइम डिलाइला वॉज वेरी फेडअप, ठीक है ना, तो तीसरी बार के बाद डिलाइला बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा उससे दोबारा से पूछना शुरू कर देती है। एवरी टाइम व्हेन ही सॉ द सैमसन शी वॉज आस्किंग ओनली वन क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर स्ट्रेंथ, तो जब भी वो इतनी फेडअप हो जाती है कि जब भी वो सैमसन को देखती है तो उससे सिर्फ एक ही सवाल करती है कि मुझे अपनी ताकत का राज बताओ। तो फाइनली सैमसन जो है उसे अपनी जो है सीक्रेट बता देता है कि द सीक्रेट ऑफ माई स्ट्रेंथ वॉज इन माई हेयर, कि जो सीक्रेट था मेरी ताकत का वो मेरे बालों में था, ठीक है ना। आफ्टर हेयरिंग दिस सीक्रेट डिलाइला कट इज हेयर, तो जो है डिलाइला क्या करती है, उसके बालों को काट देती है, और जब उसके बाल कट जाते हैं सैमसन बिकम वेरी वीक, और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। एंड आफ्टर दैट पैलेस्टाइन वर कैप्चर्ड हिम, ठीक है ना, और पैलेस्टाइन जो होते हैं वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। एंड पैलेस्टाइन वर्ड सेंड देम टू द प्रिजन, और पैलेस्टाइन उसको प्रिजन यानी कि जेल में डाल देते हैं, और उसके जो है बाल पूरा उसका जो हेड है उसको बेल्ट हेड कर देते हैं, यानी कि उसको गंजा कर देते हैं। And now the Palestine were winning all the battles against the Samson's countries, ठीक है ना, सैमसन कंट्रीज फेलोमैन, ठीक है ना, वो जो सैमसन की कंट्री के लोग थे उनके जो जंगी उनके साथ चल रही थे वो उन जंगों को जीत रहे थे। वाई? बिकॉज देयर वाज नो सैमसन नाउ, क्योंकि अब वहाँ पे कोई सैमसन नहीं था, बिकॉज सैमसन लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ बाय डिलाइला, ठीक है ना, सैमसन ने अपनी ताकत खो दी थी डिलाइला की वजह से, ठीक है। तो क्या होता है, वन डे दे वन अ ग्रेट अ वॉर अगेंस्ट सैमसन्स कंट्री फेलो, ठीक है ना, तो वो सैमसन के कंट्री फेलो से एक दिन बहुत बड़ी जंग जीत जाते हैं। तो उससे दे वर डिसाइडेड वी विल सेलिब्रेट दिस, क्या है, वी विल सेलिब्रेट दिस विनिंग, ठीक है ना, वी विल सेलिब्रेट दिस विक्ट्री, हम इस विक्ट्री को क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। सो दे वर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री, तो वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। व्हेन दे थॉट अबाउट सैमसन, फिर उन्हें सैमसन का ख्याल आता है, दे कॉल आउट द सैमसन इनटू दैट पार्टी प्लेस, फिर वो सैमसन को अपने पार्टी प्लेस में लेकर आते हैं और सैमसन को वहाँ दे वर स्टार्ट टीसिंग सैमसन, ठीक है ना, वो सैमसन को टीस करना शुरू कर देते हैं बाय सेइंग दिस सैमसन नाउ यू आर नॉट इन द इन योर नाउ सैमसन यू आर नॉट विद योर कंट्री मैन, अब आप अपनी कंट्री के लोगों के साथ नहीं हो। सो वी आर विनिंग एवरी बैटल अगेंस्ट देम, और हम तमाम जंगी उनके अगेंस्ट जीत रहे हैं। तो सम हाउ सैमसन प्रेड, ठीक है ना, तो सैमसन क्या करता है, दुआ करता है, आई विश के आई हैड गॉट माई पावर फॉर 1 मिनट, कि मुझे मेरी पावर मिल जाए, सो आई विल किल ऑल दिस पैलेस्टाइन सोल्जर, तो मैं अपने जो है सोल्जर्स को क्या कर दूंगा, पैलेस्टाइन को किल कर दूंगा। एंड दैट टाइम ही टच हिज हेयर, वो अपने हेयर को टच करता है, एंड ही फेल, कि वो महसूस करता है कि हिज हेयर वर ग्रोज, ठीक है ना, जो उसके बाल हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, इन प्रिजन कैद में। सो यानी कि बाल बढ़ रहे हैं, तो इट्स मीन अब उसकी पावर वापस आ रही है, तो उसकी पावर वापस आ गई। तो उसने क्या करा कि जो रूफ थी, जो छत थी उस हॉल की जहाँ पे वो अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, उस छत को उसने क्रैश कर दिया, और वो पूरी जो रूफ थी वो सब लोगों पे गिर गई, एंड ऑल पैलेस्टाइन सोल्जर वर किल्ड। दिस इज
दिस इज़ हाउ, और तमाम पैलेस्टाइन सोल्जर जो थे वो मर गए थे इस तरह से. इवन सैमसन डाइड टू, इवन के सैमसन भी मर गया था, बट द ड्रीम वॉज सैमसन वॉज कम्प्लीटेड, लेकिन जो उसका ख्वाब था वो पूरा हो गया था कि ही वांटेड टू फ्री हिज कंट्री मैन फ्रॉम द पैलेस्टाइन सोल्जर. वो अपनी कंट्री मैन को पैलेस्टाइन सोल्जर से फ्री करना चाहता था, और उस पार्टी में जो थे ऑलमोस्ट तमाम पैलेस्टाइन सोल्जर थे. तो इस तरह से उसने अपनी कंट्री फेलो को जो है पैलेस्टाइन से आज़ाद करवा दिया था. ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. आई होप यू हैव गॉट द स्टोरी. नाउ टेक आउट योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी. I will read only the one page, remaining pages you will read at your home. So take out your book and come to the story Samson. This is your book, White Range Reader. You will find the story Samson in this book. Okay students, so this is the story Samson. The book page number is 54. Take out your book and come to the page number 54 and start reading with me. और आपने मेरे साथ इसको रीड करना स्टार्ट करना है. स्टोरी नेम इज़ सैमसन. स्टोरी सैमसन है, और सैमसन के स्टार्ट में आपको अ पिक्चर इज़ गिवन टू यू. पिक्चर दी गई है. इन दिस पिक्चर शी इज़ अ सैमसन्स मदर. ये सैमसन की मदर हैं. एंड दिस बॉय इज़ सैमसन. एज यू कैन सी हिज हेयर वॉज वेरी लॉन्ग. इसके हिज हेयर इज़ वेरी लॉन्ग, कि इसके जो हेयर हैं यानी कि बाल हैं वो बहुत लंबे हैं. ठीक है, ओके. लॉन्ग अगो इन अ फार वे लैंड देयर लिव्ड अ बॉय कॉल्ड सैमसन. बहुत पहले एक बहुत दूर ज़मीन पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था सैमसन. ही वॉज टॉल एंड ब्रेव. वो लंबा और बहादुर था. एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत ज़्यादा मजबूत भी था. ही वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द अदर बॉयज़ हु प्लेड विद हिम. वो इतना ज़्यादा मजबूत था कि जो उसके साथ लड़के खेलते थे वो उन लड़कों से, उन बॉयज़ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूत था. ही वॉज स्ट्रॉन्गर दैन बॉयज़ मच ओल्डर दैन हिमसेल्फ. जो लड़के उससे उम्र में बड़े थे वो उनसे भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, ही वॉज स्ट्रॉन्गर इवन दैन हिज ओन फादर. ना सिर्फ ये बल्कि वो अपने जो फादर, जो उसके फादर थे यानी कि उसके अब्बू थे, वो उनसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था. एंड द सीक्रेट ऑफ हिज स्ट्रेंथ वॉज इन हिज हेयर. और जो सीक्रेट यानी कि राज था उसकी स्ट्रेंथ यानी कि पावर था, वो कहाँ था? उसके बालों में था. ठीक है, बाल यानी कि हेयर में उसका पावर था, स्ट्रेंथ का सीक्रेट था. इन दोज डेज मैन एंड बॉयज़ वॉर देयर हेयर लॉन्ग. और जिस एरा में ये स्टोरी बयान की गई है उस टाइम पे जो यूजुअली एक ट्रेंड था वो ये था कि जो बॉयज़ हैं, जो मैन हैं, ठीक है ना, वो अपने बालों को लंबा रखते थे. इट वॉज ट्रेंड और यू कैन से फैशन उस दौर का. एंड डिडंट कट इट वेरी ऑफन. ठीक है ना, और वो अपने बालों को अक्सर काटा नहीं करते थे. बट सैमसन्स हेयर वॉज नेवर कट एट ऑल. लेकिन सैमसन के बालों को कभी काटा ही नहीं गया था. Once in the hot weather he had said to his mother. एक hot weather में यानी कि गर्मियों के दिन में उसने अपनी मदर से कहा, Let me cut my hair shorter while the days are so hot. कि आप मुझे मेरे बालों को थोड़ा शॉर्टर यानी कि छोटा करने दें, क्योंकि अब जो दिन हैं वो गर्म हो शुरू हो रहे हैं यानी कि गर्मियों के दिन शुरू हो रहे हैं. Then his mother had gone to the door to make sure that no one was passing and she had said softly. और फिर उसकी मदर डोर यानी कि दरवाजे तक गई और उन्होंने बाहर झाँक के देखा. मेक श्योर यानी कि सिक्योर करा कि कोई जो वो बोलने जा रही है उसको सुनने वाला तो वहाँ पे कोई नहीं है ना. और फिर उन्होंने क्या कहा? सैमसन यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सैमसन तुम बहुत मजबूत हो. एंड योर स्ट्रेंथ इज़ इन योर हेयर. और जो तुम्हारी ताकत है वो तुम्हारे बालों में है. इफ़ वी वर टू कट योर हेयर, अगर हम तुम्हारे बाल काट देते हैं, काट देंगे, ठीक है ना, यू वुड बी एज वीक एज एनी अदर बॉय. तो आप इतने कमज़ोर हो जाओगे जितना कि दूसरा कोई लड़का होता है. सो सैमसन ऑलवेज रिमेंबर द सीक्रेट दैट हिज मदर हैड टोल्ड हिम एंड ही नेवर कट हिज हेयर. तो सैमसन ने इस राज को हमेशा याद रखा और उसने जो उसकी मदर ने उसे बताया और उसने अपने बालों को कभी भी काटा नहीं. Now his country was at war with the Palestine and they longed to drive them away and pass in peace again. अब ये बता रहे हैं उसकी कंट्री के बारे में. जो उसकी कंट्री थी वो फ़लस्तीन से काफ़ी अर्से से लड़ रही थी और ठीक है ना, उनकी कंट्री में कोई पीस यानी कि अमन नहीं था, वो अमन की तलाश में थे, ठीक है ना, ताकि वो सुकून से रह सकें, जंगों से उनकी जान छूट जाए. द पीपल ऑफन लुक एट सैमसन एंड थॉट टू दैमसेल्फ. जो लोग थे अक्सर वो सैमसन को देखते और वो ख़ुद से कहते,
हाउ फाइन इट विल बी व्हेन सैमसन इज़ ओल्ड इनफ टू बी अ सोल्जर, कि कितना अच्छा होगा कि सैमसन जब बड़ा हो के सोल्जर बन जाए या फिर आर्मी को ज्वाइन करे। देन ही विल बी एबल टू बीट फ़लस्तीन, तब हम इस काबिल हो जाएंगे फ़लस्तीन को बीट कर सकें यानी कि हरा सकें। ठीक है, पेज नंबर 45 एंड 54 एंड 55 आई हैव रीड। ठीक है ना, मैंने पेज नंबर 54 और 55 को रीड किया है। रिमेनिंग पेजेस यू विल रीड एट योर होम। रिमेनिंग पेजेस को आपने घर पे अच्छे से पढ़ना है ना। ओपन योर कॉपी एंड कम टू द वर्क ऑफ स्टोरी सैमसन। अब आप लोग आ जाएं स्टोरी सैमसन के ऊपर। ठीक है, हो जाएगा। ओके, जब भी कोई स्टोरी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिक्टेशन करते हैं। तो इस स्टोरी में भी सबसे पहले हमने डिक्टेशन किया था। आफ्टर द डिक्टेशन वी हैड वर्ड स्पिनिंग। फर्स्ट वर्ड इज yes, the first word is twig. Twig means stem or you can say टहनिया। कैप्चर, कैच, पकड़ना। अफ्रेड, स्केर्ड यानी कि डरना। स्ट्रेंथ, पावर यानी कि ताकत। सोल्जर, फाइटर यानी कि जंगजू, लड़ने वाले। ठीक है ना। इसके बाद आपके पास थे MCQs। सही है, सही है जी। नाउ कम टू द MCQs। फ़लस्तीन वांटेड टू कैप्चर डैश। जो फ़लस्तीन थे वो किसको कैप्चर करना चाहते थे? डिलाइला और सैमसन। ऑब्वियसली डिलाइला वाज विद देम। डिलाइला जो थी वो उनके साथ थी। तो कौन बचाए पे? सैमसन। सो दे वांटेड द फ़लस्तीन वांटेड टू कैप्चर सैमसन। सैमसन स्ट्रेंथ वाज इन हिज डैश। जो सैमसन की स्ट्रेंथ पावर थी वो कहाँ थी? हेयर और एयर? हेयर। डैश कट सैमसन हेयर। सैमसन के बाल किसने काटे थे? डिलाइला और मदर। सो डिलाइला कट सैमसन हेयर। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ सैमसन स्ट्रेंथ, कि सैमसन की जो स्ट्रेंथ था उसका सीक्रेट क्या था, ताकत का। द सीक्रेट ऑफ हिज स्ट्रेंथ वाज इन हिज हेयर। जो सीक्रेट था वो उसके बालों में था। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हु कट सैमसन हेयर, कि सैमसन के बालों को किसने काटा था? हिज वाइफ डिलाइला कट हिज हेयर। ठीक है ना। आफ्टर दिस वी हैड अ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर रेफरेंस द टेक्स्ट इज सैमसन वाई आर यू सो स्ट्रॉन्ग, what could we do to make you as weak as any other person? This is the text. You have to give the reference of this text, whatever I told you about the reference, how to attempt the reference. First you have to identify the line. आपने line attempt करनी होती है, फिर आपने story का बताना होता है. For example, these lines have been taken from story Samson of novel White Range Readers, written by Frederick Collins and Flesh Flower Dew. So this is the work of Samson, and this is the revision of today's class stories, A Song for a King and A Song for a King and Samson. So this is the ending of our video. After the revision, as you know, we are giving you the assessment. So you have to solve that assessment after the revision classes by yourself. ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, मैं आपको assessment दे रही हूँ जिसे आपने solve करना है। Note the assessment carefully and solve it by yourself. This is your assessment 2. सही है। In this assessment I have given you the 5 questions. मैंने आपको 5 questions दिए हैं। शुरू करूँ बोलना? यहाँ से शुरू करती हूँ। सही है। Okay, assessment number 2. This is our second video. So in this video, so obviously this is also our assessment 2. This assessment is based on 2 stories, A Song for a King and Samson, that we had discussed in this video. ये assessment किस story से related है? Samson और A Song for a King, जिसे अभी हमने review किया है. Now come to the question number 1. Question number 1 is MCQs. MCQs हैं आपके पास जिसे आपने solve करना है। ठीक है ना। It's just like a fill in the blanks. ये आपके पास क्या है? Fill in the blanks हैं। Number 1 is the secret of Samson strength was in his dash. सैमसन की सीक्रेट का स्ट्रेंथ किस चीज़ में था? आपने उस चीज़ का नाम लिखना है।
नंबर 2 इज ब्लॉन्डल वॉज अ ग्रेट डैश. ब्लॉन्डल ग्रेट कौन था? वट वी लर्न अबाउट द ब्लॉन्डल. क्या पढ़ा है हमने ब्लॉन्डल के बारे में? ब्लॉन्डल का प्रोफेशन आपने यहाँ पे बताना है. द थर्ड वन इज डैश कट सैमसन हेयर. कि सैमसन के हेयर को किसने कट किया था? नाउ कम टू द फोर्थ वन. किंग रिचर्ड वॉज इम्प्रिजन्ड इन द कैसल ऑफ डैश. कि किंग रिचर्ड को कौन से कैसल में, ठीक है ना, आपने जगह बतानी है किस जगह के कैसल में, महल में उसे कैद करके रखा गया था. फिफ्थ वन इज डैश किल्ड ऑल पैलेस्टाइन सोल्जर. किसने तमाम पैलेस्टाइन के सोल्जर को मारा था, किल किया था? नाम लिखना है आपने. देन सिक्स इज पैलेस्टाइन वांटेड टू कैप्चर डैश. पैलेस्टाइन किसको कैप्चर करना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे? सेवन वन इज डैश वॉज अ पैलेस मिनिस्टर. पैलेस मिनिस्टर का नाम लिखना है जो भी था. देन एट इज सैमसन लाई टू डिलाइला डैश टाइम. सैमसन ने डिलाइला से कितनी बार झूठ बोला था अबाउट हिज स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये आपने बताना है. नंबर 9 इज ब्लॉन्डल सेंग डैश सॉन्ग. जो ब्लॉन्डल था वो कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादातर जो सॉन्ग है उनको सिंग किया करता था, ठीक है ना. आपने ये बताना है, लैंग्वेज बतानी है कि वो कौन सी लैंग्वेज में, वो जो है इटालियन लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पेनिश में, कौन सी लैंग्वेज में वो सॉन्ग को सिंग किया करता था, वो लैंग्वेज का आपने यहाँ पे नाम लिखना है. एंड द लास्ट वन इज सैमसन वॉज अ डैश मैन. सैमसन कैसा मैन था? स्ट्रॉन्ग था, वीक था, टॉल था, ठीक है ना, आपने ये बताना है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. सही सही है ना. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. वर्ड्स मीनिंग. सही है, तुम सीधा कर दो ना. सही है जी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. वर्ड्स मीनिंग. आई हैव गिवन यू सम वर्ड्स, यू हैव टू राइट देयर मीनिंग आफ्टर लर्निंग और आफ्टर मेमोराइजिंग. आपने क्या करना है, इन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं याद करने के बाद. फर्स्ट वर्ड इज हूफ, ड्यूक, कैप्चर, स्ट्रेंथ, सोल्जर, इको, स्ट्रॉल्ड, अफ्रेड. हूफ्स, ड्यूक, कैप्चर, strength, soldier, eco, stroll, afraid. Then come to the question number 3. In question number 3 I have given you the 3 questions. You have to write their short answer, ठीक है. The first question is who cut Samson's hair? Who cut Samson's hair? Number 2 is who was a palace minstrel? Who was a palace minstrel? And the third one is what was the secret of Samson's strength? What was the secret of Samson's strength? Now come to the question number 4. In question number 4, I have given you the pictorial comprehension that we had discussed in this class. ठीक है ना, जिस पिक्चर को हमने डिस्कस किया है उसी का आपको दे रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो. द पिक्चर दैट इज़ ऑन पेज नंबर 48 एंड 49. ठीक है ना, अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 48 और 49 पर आएंगे. दिस इज़ द पिक्चर on page 48 and 49. I am giving you this picture in pictorial comprehension. Okay. So the first question is write down the character name. आपने कैरेक्टर का नाम बताना है जो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है वो कैरेक्टर नेम, आपने इसका नाम बताना है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में यहाँ और यहाँ जो भी कुछ हो रहा है आपने उसे डिस्क्राइब करना है, उसे बताना है, ठीक है. एंड देन कम टू द लास्ट क्वेश्चन, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. गिव द रेफरेंस ऑफ द गिवन कॉन्टेक्स्ट के आपने रेफरेंस देना है इन लाइन्स का. टेक्स्ट आपके पास है, Samson, why are you so strong? What could we do to make you as weak as any other person? This is the text. I am reading it again. Samson, why are you so strong? What could we do to make you as weak as any other person? You have to write the reference of these line, these text. Okay? So this is your assessment number 2. You have to solve this assessment by yourself after learning. Yes students, so this is the review of these 2 stories are Song for a King and Samson, and I have also tell you about the worksheet. This is your worksheet.
ठीक है ना, you have to solve this worksheet by yourself after learning. ठीक है ना, आपने पढ़ने के बाद इसे solve करना है. Now come to the homework of video 2 of English Literature E2. This is your homework. The homework is solve assessment 2. Okay, you have to solve the assessment that I have discussed. ठीक है ना, जिसे मैंने अभी डिस्कस किया है, आपने इस असेसमेंट को अच्छे से सॉल्व करना है बाय योरसेल्फ. So that's it for today's class. What we learned in this today's class, in this class we had, as you know that in this video session we are giving you the revision of second semester final exam. The give you the revision. The purpose is that to prepare you for second semester final exam, ताकि आपको final exam के लिए prepare किया जाए. So in this class we had discussed about the story A Song for a King and Samson. I hope you have got everything. If you are okay, so that's it for today's class. I hope you have got everything. If you have any problem, watch this video again and again so that your problem can be resolved. We will meet in our next class. Till then, take care. Allah Hafiz.